I think that is visible to you, I believe. Yeah. So friends, these are the two types of audit under chapter 13 of the law, CGST Act. Sir, now connection is fine. I think recording was also stopped. Recording stopped and then now restarted. My connection is giving issues today. It's okay, sir. It's okay. We understand. I'm sorry. My apologies to the house. It's okay, sir. So these are the this is the chapter 13 of audit under CGST Act 2017, which has got two types of audits: audit by tax authorities and special audit. The topic for discussion today would be audit by tax authorities, section 65, read with rule 101, and special audit, section 66, read with rule 102. So these are the two forms. Normally, I always try to consolidate the entire law. Whenever I read a particular section, I read the relevant rule as well as the relevant form applicable to the section and rule. So that's what we did here also. In section 65, audit, ADT 01 and ADT 02, two forms are relevant. 66, ADT 03 and 04 are relevant. The topic for discussion today would be our audit by tax authorities, 65 audit. My dear friends, this one slide again, because recordings will be shared. This recording will be shared, not the earlier one. So we've lost the initial recordings. So for the recording purposes, who will be going and listening the recordings? For them, let me inform them that we have C. Rajendra Rodaji, who is taking us to GST audit by the GST department. Please, Rajendra. Right, sir. So, friends, this 65 audit has gained all the more importance because of the absence of 35.5. I'm repeating at the cost of repetition, those who started listening from now. So, this 65 audit, section 65, read with rule 101, this in one slide actually gives us the entire semantic, the entire flow of section 65, along with even rule also. Let's read the this slide only, and then we'll come to know what is this all about. First of all, commissioner by general or a specific order. So please mark these words: general or a specific order. General order, like I would be taking you to that criteria also, how to select, how these industries are selected, कि इनका audit special audit, departmental audit किसका होना है, किसका नहीं होना, इसका भी एक internal circular हमारे पास है. Risk parameters define किए हैं गवर्नमेंट ने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसी पीपीटी में ही. मैं सतीश सर को ये पीपीटी भेज दूंगा और फिर आपके पास ये पहुंच जाएगी. इस पीपीटी में मैंने वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स वो डॉक्यूमेंट्स लगभग 300 पेज के हैं, तो इस पीपीटी में नहीं आ सकते. मैंने गूगल ड्राइव लिंक बनाकर इसमें मैं आपको बस फटाफट दिखा देता हूँ. पीपीटी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वो 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं मित्रों. ये तीनों का गूगल ड्राइव लिंक इस स्लाइड पे लगा हुआ है. आपको इसी पीपीटी से वो तीनों डॉक्यूमेंट्स भी आराम से मिल जाएंगे. चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, कमिश्नर बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर. अब ऑर्डर देख लीजिएगा, जनरल ऑर्डर है या स्पेसिफिक ऑर्डर है, इसका क्या डिफरेंस होता है. जनरल ऑर्डर एक इंडस्ट्री के लिए होगा, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए होगा. स्पेसिफिक ऑर्डर आपकी स्पेसिफिक एंटिटी के लिए होगा. Undertake audit of the registered person for financial year or part thereof or multiples thereof. Each and every word is important. Sir, I am removing this earphone. अगर आपने मुझसे कुछ कहना हो तो आप मुझे thumbs up करके आप बोल सकते हैं. अभी I am removing, I am not able to hear anything. I am just speaking. So audit जो है वो registered person का financial year के लिए या part thereof या multiple part thereof. तो 17-18 का financial year पार्ट देयर ऑफ, 18-19, 19-20 पूरे के पूरे 3 साल का ऑडिट इकट्ठा कैन बी पॉसिबल. मे कंडक्ट ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन. या तो रजिस्टर्ड पर्सन के प्लेस ऑफ बिजनेस पे ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा या इन देयर ऑफिस, डिपार्टमेंटल ऑफिस किया जाएगा.
proper officer shall issue notice not less than 15 working days prior to the conduct of audit. तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर ऑडिट कंडक्ट होना है तो आपको ऑडिट के कंडक्ट होने से 15 दिन पहले आपको नोटिस दिया जाएगा ADT 01 में रजिस्टर्ड पर्सन को कि इस दिन हम आपका ऑडिट कंडक्ट, 15 दिन का टाइम आपको मिलना चाहिए अगर आपके प्रेमिसेस पे ऑडिट कंडक्ट होना है तो। PO may inform RP of the discrepancies. RP may file reply. PO shall finalize audit after consideration of reply. Now audit क्या है कि ऑडिट जो है अगर आपको 15 दिन का नोटिस दिया गया है तो सबसे पहले तो बिगिनिंग होनी है, या तो नॉर्मली क्या है कि डिपार्टमेंट ने इंटरनल सर्कुलर में भी ये बात बोली है दैट द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड एट द डिपार्टमेंटल प्लेस ओनली, डिपार्टमेंट ओनली, नॉट एट द प्रीमिसेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। आज की डेट में नॉर्मली बट एट सम एक्सेप्शंस department is coming to the place of business of the registered person also, but normally they are seeking information, they are asking information to be given to them, documents, information, papers to be given to them, and then they are conducting audit at their premises only. So audit shall be completed within 3 months from the date of the commencement of the audit. Now please be with me, this is very important, that what is the timeline available to the officer to complete the audit. So it says 3 months from the commencement of the audit. Now commencement का definition यहाँ पर दिया गया है, आप एक कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम में देखिए, commencement of audit का अर्थ है the date on which the records and documents are made available by the RP to tax authorities. जिस दिन sir just a second sir. Yes, sir. So I might be asking questions on behalf of the participants. So one obvious question is, as the timeline is given 3 months, and that is 3 months available from the commencement of audit, and commencement will start on the date when records and documents are produced, submitted to the department. Supposing, as you all know, the department, whenever issuing notice or letter, it contains a list of a long list of documents to be produced, whether relevant, not relevant, irrelevant documents are also asked. Then if I go and submit one of that list, one document out of that list today, so my audit is commenced today? No sir, that is the catch here. So he's got a very valid point. Let me read the statement again. The date on which records and documents are made available to the RP, by the RP to the tax authorities. Now, documents in all, whatever document I am as a tax authority required, audit authority required, if you have submitted all docs to me, then I would consider it commencement of audit. Okay. Now, sir, let me complete, sir. Now, if a list of 50 documents are required from me, you have provided 49 in one go, 50th document after 10 days, and even if after providing 50th document, you may say after providing 50th document, commencement of audit is done. But if he asks immediately next day 10 more documents, and then when those 10 more documents would be submitted, the commencement shall be considered on that day. So you answered my question, which I was trying to ask. But this is not, against the assessees, against ये बदमाशी है सर, बदमाशी है सर, बदमाशी है सर। मैं ये वाला वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था। नहीं सर, मैं तो देखिए सर, हमें डिपार्टमेंट से तो हम तो डिपार्टमेंट के, मैं सर एडवोकेट्स क्या है सर, एडवोकेट्स हैं असिस्टेंट्स टू द कोर्ट एज पर एडवोकेट्स एक्ट। सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं असिस्टेंट्स टू द नेशन, असिस्टेंट्स टू द कंट्री। अगर आज हम ना हो तो जीएसटी में जो 1.25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा है सर, मेरे ऑफिस से भी साल का जो है 100-150 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है सर। सो मैं अगर हम सब मिलाए तो हमने तो 1.5 लाख 1.25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया हुआ है, और किसने इकट्ठा किया हुआ है? तो ये तो सर क्या है कि हम लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे नहीं सर तो हमें तो
जो भी बोला जाता है हम पर थोप दिया जाता है। एनीवेज, जी सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं बस जी, दादागिरी तो है ही है, बट दादागिरी है तो कोई बात नहीं सर, ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा था वो मैं कह नहीं रहा। पंजाबी में आगे चलें। पंजाबी में कहते हैं सर, कदी दादे दी कदी पोते दी। तो ठीक है, आज अगर सरकार की चल रही है तो कभी हमारी भी चलेगी, ऐसी बात नहीं है। हम बोलना शुरू करेंगे तो हमारी भी चलेगी। और जिस दिन सर ये 100 लोग इकट्ठे हो गए ना सर, जो अभी यहाँ पर हैं पूरे एग्जैक्ट 100, अब तो 101 हो गए सर, उसके बाद ही चलनी शुरू हो जाएगी इमीडिएटली। हम 100 भी इकट्ठे नहीं हो पाते, आई एम सॉरी टू से। एनीवेज, सो दिस इज बदमाशी सर, this is a nuisance which is created in the law. And sir, in earlier times when the service tax audit or excise audit used to be there, this was the major problem. The timeline was not provided in earlier law. When would it be completed? Now it is provided, but this commencement word is added. So now commencement is subject to different interpretation. जब उसने यहाँ पर commencement को define कर दिया, तो इसलिए कमेंसमेंट तभी होगा जब उसकी सेटिस्फेक्शन से कागज मिल जाएंगे। और दूसरा, but then this is at least this particular point is unfair. If he has asked in one list, initial list 50 documents, and 50 documents are deposited, submitted by the taxpayer, it should be deemed to be commenced. The mean further documents he might ask at the very fag end of the third month. ऐसे ही होगा सर, ऐसे ही होगा सर, ऐसे ही हो रहा है सर, ऐसे ही हो रहा है और ऐसे ही होगा सर। So actually it has an unlimited period. Absolutely, absolutely, यही हुआ है सर। 2-2 साल जीएसटी और सर्विस टैक्स ऑडिट चला है सर, एक्साइज ऑडिट इन अर्लियर डेज। आज भी 6-6 महीने 8-8 महीने चल रहे हैं सर ऑडिट, क्योंकि कोई कमेंसमेंट। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात कि अब चलिए ठीक है 3 महीने का टाइम दिया गया, उसको फर्दर 6 महीने एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब चलो कमेंसमेंट हो भी गई तो भी 9 महीने का टाइम तो उसके पास उसको ऑडिट को कंडक्ट करने का, विच इज ह्यूज, वेरी लॉन्ग टाइम। इट इज नॉट, मतलब जब तक वो मेरे साथ इंटरेक्ट करता रहेगा मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल रहेगा। मुझे कागज देने हैं उसको इंटरेक्ट करना है, और अगर वो मेरे यहाँ आके बैठ गया। And further, as you said, the audit can be of any period, a part of year. Suppose he wants an audit to be done for a month, and he has 9 months to complete it. Extended period. वैसे तो मंथ का नहीं होगा सर, फाइनेंशियल ईयर का ही होगा normally. He can always ask for part of, so period is important. वो हम बोल सकते हैं कि it should be financial year or part of the financial year. Part of the financial year only permitted specifically to cover that 1st July वाला period. Otherwise partial month का audit करना, आप you can always object that you please complete the audit for a particular financial year. And okay, even if it is for one financial year, then taking 9 months of time, that too after we have submitted the documents, so वो तो 100% documents से भी ज़्यादा check हो सकते हैं। 100%। And we as an auditor are given 2-3 months of time. 2-3 महीने भी कहाँ है? हमें भी 2-3 महीने भी कहाँ मिलते हैं सर। हमारे पास तो ऑडिट की डेट 2 दिन बाद होती है और पहले डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि देख लो ऑडिट। वो चलो, that is between client and us. The government is giving a few months only. हाँ, वो बात ठीक है आपकी। लेकिन सर देखिए, एक्चुअली 31 मार्च से फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के बाद जो जीएसटी ऑडिट 35/5 का था, उसकी 31 दिसंबर डेट थी सर। तो हमें भी यहाँ 9 महीने दिए गए थे ऑडिट करने के लिए किताबों की। तो दिनेश जैन जी का एक चैट बॉक्स में आ गया, क्लाइंट रिसीव्ड ऑडिट नोटिस ऑन 21st of December 20 and they have submitted all details to the department and asked for the visit, but they were supposed to visit our premises for audit, which they did not till date. So will now the audit they conduct by visiting the premises, is it valid? हाँ सर देखिए, जब तक आपके यहाँ पर आने का मतलब है कि आपके यहाँ अगर आ रहे हैं तो एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऑडिट, actual institution would be when they would come and install the team of the audit at your business place of business, then it would be considered to be institution of audit. और अभी ऑडिट आपका इनिशिएट ही नहीं हुआ, ना कागज उन्होंने मांगे ना आपके यहाँ आए हैं, तो whichever is later that shall be the date of commencement of audit. ठीक है जी। तो then now moving ahead,
as I said that this 3 months time can be further extended for 6 months, another 6 months, go light, extended further 6 months. So total 9 months time is there. Now, this is the one very interesting question again comes up. Who can do my audit? Whether it is center or state or both authorities. So this is also a very relevant question these days. But I must tell you that cross jurisdiction as circular 3 also, and some other of the findings of the various high courts and the minutes of the GST council meetings, circular 3 beginning with the cross jurisdiction. It started with the cross jurisdiction. Friends, recently in Delhi High Court, a judgment in a case, the Honorable High Court pronounced that the cross jurisdiction, first of all, let me please give your attention at this point, that cross jurisdiction is only permitted with two situations. One is administrative and another is intelligence based information, investigation. इन दोनों के अलावा अगर आपका जुरिस्डिक्शन स्टेट का है तो सेंटर आप पर कुछ नहीं कर सकता, अगर सेंटर का है तो स्टेट आप पर कुछ नहीं कर सकता. In very recent judgment of the Honorable Delhi High Court, the same situation was DGGI initiated audit and then the state authorities also started with the audit. The taxpayer went to the court and the Honorable High Court said that only one authority can start with the audit and conclude it. If it is started by one particular department, then the other department will not conduct or initiate any other inquiry or proceedings in that particular situation till the conclusion. So now audit is done, started by one authority, then would be concluded by the same authority. Another authority cannot initiate the same period for audits. That is what is very much clear now. So you must keep this in mind कि अगर दो authorities आपको pursue कर रही हैं, approach कर रही हैं, तो आप clearly बता सकते हैं. Then moving ahead, now ADT 01 में तो उसने आपको दे दिया, notice दे दिया. अब वो जब audit conduct कर रहा है तो audit conduct करते हुए अभी तो हम process समझ रहे हैं, audit conduct कैसे करेगा, क्या check करेगा, वो सब बातें मैं बाद में बताऊंगा. अब वो ऑडिट कंडक्ट करते हुए उसने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस निकाली जिसको हम ड्राफ्ट ऑडिट पैरास कहते हैं. इन अर्लियर टाइम्स आल्सो वी यूज्ड टू कॉल देम लाइक दिस. उसने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस निकाली हैं जी. अब वो ऑब्जर्वेशंस आपको ड्राफ्ट देगा और आपसे कहेगा, देखिए एक बात बड़े क्लियरली समझ लीजिए, किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, किसी भी क्वाजी जुडिशियल, क्रिमिनल, सिविल, किसी भी प्रोसीडिंग्स में principle of natural justice has to be adhered, and principle of natural justice are three. I'm a little digressing from the topic, little one, because this is important to understand and discuss. First is three limbs of the principle of natural justice. First is that the person who is the party to particular situation would not be judging the same situation. Interested party, interested person should not be judging the same situation. Second, that is the principle of natural justice. That this has been devised by various judgments by the Honorable Apex Court and various high courts. And let me tell you, since 18th century in our country, when the Indian Penal Code was being designed by Britishers, the entire code is being designed considering this principle of natural justice only. Any and every point can be struck down, read down, differently interpreted. The notices, proceedings, actions are considered to be, thousands of actions are considered to be invalid only and only on the grounds of not adhering to principle of natural justice, which is commonly called as in legal maxim, Latin maxim, audi altum partem. So now the second limb of principle of natural justice, please make sure while replying to your notices, while replying to your audit paras. Second is that opportunity of being heard in person and in writing.
द रिप्लाई का जो मौका है वो इन पर्सन और राइटिंग में आपको मिलना चाहिए. थर्ड, you should be allowed to cross examine the statements, documents, evidences used against you. My dear friends, these are the basic three verticals on which the principle of natural justice stands. So similarly, this is a judicial or quasi-judicial proceeding or audit adjudication proceedings or audit proceedings. I would not call them adjudication proceedings, but audit proceedings. Similarly, here also in this case, you should be given with the opportunity of being heard in person and in written, in writing. So he would be giving you the audit para, and then he would be giving you an opportunity for reply in writing and in person also. After receiving your written reply, he would be deciding the final conclusions. On conclusion, PO shall within 30 days inform RP, the registered person, findings. जब उसको जैसे आपको ऑडिट पैरा दिया, ऑडिट पैरा के बाद आपने उसको रिप्लाई दिया 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन के बाद, ऑफ कोर्स ए रीजनेबल टाइम है, दिस टाइम इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड. आपने उसको रिप्लाई दिया, रिप्लाई मिलने के 30 दिन के बाद वो कंक्लूजन डिजाइन करेगा, अपना ड्रॉ करेगा, और कंक्लूजन ADT 02 में आपको अपनी फाइंडिंग्स देगा, रीजंस फॉर फाइंडिंग्स देगा. ध्यान से सुनिए. Speaking order is also a very important vertical, a limb of the principle of natural justice. Speaking notice, speaking order. अगर नोटिस आपका स्पीकिंग नहीं है, अब जैसे मैंने कल परसों we were dealing GST में, मतलब मैं GST की बात कर रहा हूँ, शायद आप भी GST की बात कर रहे हैं. GST में कहीं स्पीकिंग ऑर्डर जैसी बात होती है? शो कॉज नोटिस में कोई रीजनिंग की बात होती है कहीं? सर मैं वही, आपकी बात बिल्कुल सही है. मैं कल एक GST अपील की हियरिंग में था, उनको मैंने बताया कि जो फर्स्ट शो कॉज नोटिस है बड़ा वेग था. एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रूल वर वायलेटेड, तो वो इनवैलिड है सर. वो तो जब मैंने ऑब्जेक्ट किया तो डियर व्हाट शी सेड, वो ना हमारे सिस्टम में ऐसे ही है, तो सिस्टम में उतना ही आता है इसलिए हमें वही डालना पड़ता है. Then I responded, look, it has to be, show cause notice has to be giving clear reasons why this show cause notice is being issued. नहीं वो मेरे को पता है. I mean, वो ना तो show cause notice जो इशू करते हैं वो बड़ा वेग इशू करते हैं, कोई रीजनिंग नहीं देते, और उसके बाद हमें पता है और उसका कोई मतलब अपील लेवल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है. नहीं प्रैक्टिकल, आई एम गिविंग यू प्रैक्टिकल. थ्योरी में मैं आपकी नहीं आपकी बात सही है सर. प्रैक्टिकल में मैं बता रहा हूँ. मैं frankly speaking, yesterday also we were making a reply of show cause notice from whereas it is not in the case of income tax. income tax में वो follow करते हैं. नहीं, आजकल 148 के स्पीकिंग ऑर्डर्स नहीं आ रहे. 148 के जो नोटिसेस भी हैं वो हमने पता किए, देखे हैं, वो भी अपने आप में वेग हैं. पैन नहीं है उनपे, और कोई पैन ही नहीं है कई नोटिसेस पे, तो दैट इज आल्सो इनवैलिड नोटिस. एनीवेज, नहीं कुछ भी नहीं है, आधार भी नहीं है, सिर्फ नाम और एड्रेस है. So that is also invalid notice. Yeah, पर जब हम अपील में उसको चैलेंज करेंगे तो then they accept it. 100% relief. But here in GST appeal they don't. सर देखिए, मेरे सिस्टम में ऐसे चलता है जी. मेरे हिसाब से तो सर हमने पहले हमने जो भी इस तरह के जो नॉन स्पीकिंग शो कॉजेस हैं वो हमने कंटेस्ट किए हैं और हमें उसमें रिलीफ भी मिला है सर. GST में? हाँ, GST में सर. और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली एक रिफंड का केस था जिसमें हमने तो बस एक ही ऑनलाइन वर्चुअल हियरिंग ली, जस्ट वन हियरिंग, एंड वी प्रेजेंटेड आवर पेपर बुक, और उसमें हमने the issue was refund was rejected because of the non application of notification 40/17, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर की नोटिफिकेशन थी जिसमें 0.1% का रिलीफ था. तो उसमें क्या हुआ कि सिर्फ शिपिंग बिल पे जो फाइनल एक्सपोर्टर था उसने जो पेनल्टीमेट एक्सपोर्टर, जिसको हम पहले पेनल्टीमेट एक्सपोर्टर कहते थे CST लॉ में, उसका GSTIN नहीं था. सो हमने उसको we contested it, and on the very first hearing we presented that the procedural lapse would not restrain me from my substantive benefit, and we got the relief and refund was granted also. So that way when we object with कई केसेस में कई ऑफिसर्स हैं सर नहीं लेते हैं उसका कॉग्निजेंस,
कई ऑफिसर्स लेते हैं, ये भी बड़ा सब्जेक्टिव सिचुएशन है, ऑफिसर टू ऑफिसर डिपेंड करता है. सो दैट वे ही इज गॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट सतीश सर, कि अब शो कॉज नोटिस में जैसे उन्होंने कहा जी एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट पर रूल्स. मैं आपको बताऊं एक बात, हालांकि आज शो कॉज नोटिस का टॉपिक नहीं है, लेकिन वो भी मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, वेरी नियर टू माय हार्ट. एक मैं आपको सर्कुलर बताना चाहता हूं सतीश सर. एक सर्कुलर है 19 जनवरी 2017 का, वो सर्कुलर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसका नंबर नहीं है. सर्कुलर सीबीईसी ने इशू किया है पुराने प्री जीएसटी एरा में, और उस सर्कुलर 27 पेज का सर्कुलर है सर, ब्यूटीफुल सर्कुलर. और उस सर्कुलर में 1985 से लेकर 2016 तक के जितने भी शो कॉज से रिलेटेड सर्कुलर्स थे वो सारे सुपरसीड कर दिए सर, और एक वो सर्कुलर रेलेवेंट है सर आज की डेट में. तो वो सर्कुलर कैटेगोरिकली ये कहता है कि शो कॉज नोटिस जो है वो स्पीकिंग होना चाहिए, पूरा डिटेल होना चाहिए, सब कुछ लिखा है उसमें, जो आपने बात बोली मैं रिपीट नहीं कर रहा. तो यू कैन ऑल्सो रेफर, जरूर कर दीजिए. हाँ जी, हाँ ना सर 100% शेयर करूंगा. मैं तो पब्लिक में जब भी शो कॉज नोटिस पढ़ाता हूँ, हम लोगों को तो पता है, पर वो जीएसटी जो अफसर्स है ना, उनको दिखाने के लिए जरूरी है. नहीं सर, आपको मैं बिल्कुल दूंगा. और ऑफ कोर्स सर देयर आर मल्टीपल केस लॉज. अभी रिसेंटली सर काशी बर्तन भंडार का इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं कम से कम 4-5 जीएसटी की असेसमेंट भुगत रहा हूँ, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया या कुछ और एक्शन ले लिया, जिसमें फर्स्ट शोकाज नोटिस जो है बिल्कुल वेग था. और मैं उसमें से 2-3 में ऑलरेडी अपील में हूँ, 1-2-3 और अपील मेरी बनने वाली है. हाँ तो सर आप वो सर्कुलर आपको बड़ा फायदा देगा सर. तो मैं अब जो नई बनेगी उसमें साथ ही लगा दूंगा. हाँ सर बिल्कुल लगा दीजिएगा. और साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं मित्रों, इस बात के माध्यम से, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं भैया वो पुराने कानून का कानून है, पुराने कानून का सर्कुलर है, क्या आज लगेगा? मित्रों देखिए, बिल्कुल लगेगा. दो बेसिकली लीगल प्रिंसिपल्स हैं, एक है रेशो डेसिडेंडी और एक डिसाइसिस सुसॉरिस. ये दो लीगल प्रिंसिपल्स हैं. क्लियरली ये बोलते हैं कि जो भी प्रेसिडेंट्स एस्टैब्लिश्ड हैं, जो कि अभी तक जिनका अभी तक रेलेवेंस है और कानून में कहीं ना कहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो सारे जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है वो एप्लीकेबल है. बहुत सारे एपेक्स कोर्ट के जजमेंट्स हैं, आप वो भी अगर मुझसे चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा. और रेशो डेसिडेंडी इज आल्सो दैट द रेशो व्हिच इज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय अ पर्टिकुलर जजमेंट would continue to be applicable till this universe exists, provided the facts are similar. So the facts should be similar. It should not be disproportionately or vaguely adjusted. But if they are similar, the ratio decidendi, that is also a legal principle. These are all legal disciplines which even our honorable high courts and apex court only decided. So anyways, this also, of course, this is again a not a show cause notices wali discussion. But it is again always relevant. हाँ जी. Because ultimately after audit we may end up filing an appeal. Frankly sir, we would end up filing an appeal, sir. Yeah, that is the only outcome, sir. That is what they are doing it, sir. Yes. So friends, this also I can give you some judgments for this, both the principles also, Supreme Court judgments. So these are very much relevant. वो आप 19 जनवरी 2017 का सर्कुलर लगाएं, और अगर साथ ही कल को डिपार्टमेंट ये भी ऑब्जेक्ट करता है तो ये दो केस लॉ भी सुप्रीम कोर्ट के लगा दीजिएगा, और साथ में अपनी उसमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में लिख दीजिएगा, ग्राउंड्स ऑफ अपील में लिख दीजिएगा कि भाई साहब ये वाला सर्कुलर जो है आज भी एप्लीकेबल है. ठीक है जी, इन केस लॉस के बेसिस पे एप्लीकेबल है. तो मैंने पूरी आपकी वो तैयारी कर दी उस चीज में कि ये सर्कुलर लगेगा. बिल्कुल जी. तो अब आगे बढ़ते हैं मित्रों. इसमें ADT 02 आएगा. अब ADT 02 आएगा तो consequently audit results in if audit results in detection of tax not paid, short paid, erroneously refunded, ITC wrongly availed or utilized, PO may initiate action under section 73 or 74. Very simple. So it is very simple. अगर ऑडिट्स की फाइंडिंग में रिजल्ट आता है कि आपने टैक्स नहीं पे किया, शॉर्ट पे किया, एरनेस आईटीसी गलत ले लिया, एरनेस रिफंड लिया, आईटीसी रॉन्गली अवेल किया, यूटिलाइज किया, प्रॉपर ऑफिसर आपको 73 या 74 में आपको शो कॉज देगा. दैट इज द ओनली आउटकम. एंड लेट मी टेल यू, every 65 would result in show cause.
and every show cause is the beginning of litigation. तो पार्टी तो अभी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है सतीश सर। लिटिगेशन वाली तो अभी बात शुरू हुई है। अभी हमारे मित्र जो थे कानून पढ़ चुके हैं सारा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर जैसे आगे की जो कहानी है वो डिटेल में लिखी है, एक ही स्लाइड में हमने सारा आपको कवर कर दिया, सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको बोल दी हैं, सब बातें बता दी हैं। ये कुछ मैं 10 पॉइंट्स आपके सामने बनाकर लाया हूं जो ऑडिट का सॉल्यूशंस में मैं बात करूंगा, और फिर ये मैं आपको ले चलूंगा इन 3 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। इन 3 डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या करवाया गया है, ये सब मैं आपसे बात करूंगा। ये भी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बातें वही है सर कि पीपीटी जो है वो दिखानी पड़ती है सर की पीपीटी बनाई है, तो अदरवाइज तो आप बड़े भाइयों की कृपा है, अब तो रट्टे गए हैं सारी चीजें। सो फ्रेंड्स, अब ये 10 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। कीप ऑल द इंफॉर्मेशन अप एंड रेडी इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर सो दैट द सेम मे बी प्रेजेंटेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, दिस इज अ very good professional opportunity for all of us. We must consider this, that if the department would come and audit us, it may find 1, 2, 3 or more shortcomings, non-compliances or something like that. So it is very important that please conduct the pre-audit, and that is a professional opportunity, my dear friends. अभी मैं जब आपको इंटरनल सर्कुलर दिखाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा कि पूरे भारत में कितनी टीमें बना दी हैं डिपार्टमेंट ने, और ये 2019 की बात है। अभी तो आप देख ही जाइए, ये एनुअल रिटर्न 19-20 की फाइल हो गई, 20-21 की जब एनुअल रिटर्न फाइल होगी, इस बार डेट एक्सटेंड नहीं होगी, ध्यान रखना आप, 31 दिसंबर ही रहेगी डेट। और हम चाहते भी नहीं है कि एनुअल रिटर्न की डेट एक्सटेंड हो, क्योंकि एनुअल रिटर्न की डेट लिंक्ड है आपके सेक्शन 36 से। सेक्शन 36 कहता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 72 महीने फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। और सेक्शन 73-74 से लिंक्ड है ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो जितनी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न एक्सटेंड होगी उतने दिन तक ये जो शो कॉज की तलवार है मेरे सर पर लटकती रहेगी। तो मैं तो नहीं सजेस्ट करता कि भैया ये एनुअल, और अब ऑडिट भी नहीं होना, करना क्या है, सेल्फ सर्टिफिकेशन है ना जी। जहां आपको लगे फीस मिलती है वहां अच्छा काम कर देना, जहां फीस नहीं मिलती जो क्लाइंट कहे कर देना, क्योंकि क्लाइंट तो माई बाप है, क्लाइंट जो कहता है वही परम सत्य है। एज इफ द लॉर्ड रामा himself appeared on this earth and said, Rajendra, this is the only truth, so I would be considering this is the only truth, this is the gospel truth. I always do that whenever I appear before authorities. So conduct pre-audit, and that is a professional opportunity, friends. हर किसी को समझाइए कि भैया अगर 50 करोड़ से ऊपर धंधा है, 40 करोड़ से ऊपर धंधा है, तो ऑडिट होना है, आज नहीं होगा, साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, ऑडिट होना ही होना है डिपार्टमेंट का। हमारी ऑडिट की फीस बचा ली तुमने, डिपार्टमेंट की फीस नहीं बचा पाओगे, जो वो परेशान करेगा, मतलब फीस तो क्या लेगा वो, हरेसमेंट जो इन टर्म्स ऑफ परेशानी और ये सब। तो खैर पब्लिक में बहुत सारी बातें सतीश सर बोली नहीं जाती हैं, तो बिना बोले सब कुछ बोल रहे हो राजेंद्र जी। सर देखिए, मैं हूं जीएसटी की राह में सबका दोस्त, तो दोस्ती सबका दोस्त, आपका दोस्त, आपका दोस्त नहीं, सबका आगे बता दो। मैं वो नहीं बोल रहा, आप बोलोगे वो। तो भाई साहब क्या सभी कहते हैं जीएसटी की राह में रोड़ा राजेंद्र अरोड़ा, तो वो ठीक है, वो एक हमारा प्यार भरा संबोधन है, लेकिन मैं हूं आपका दोस्त, तो मुझे जिम्मेदारी है मेरी आपको ये बताना कि भाई साहब कहाँ कहाँ आपके पास रॉड ब्लॉक्स हैं, कहाँ बॉटलनेक्स हैं, उनको कैसे दूर करना है आपने। तो प्री ऑडिट जरूर कराइए। आप सबको ये बोलिए कि भैया आप अपना प्री ऑडिट कराएं। प्री ऑडिट का मतलब है हेल्थ चेक। आप ए से लेकर जेड तक पूरी कहानी देखें, एक्ट देखें, रूल्स देखें। अब छोटी सी बात मैं आपको बताऊं मित्रों कि आपको साइन बोर्ड लगाना है, बहुत सारे मित्रों को पता होगा कि साइन बोर्ड लगाना है नाम और जीएसटीआईएन के साथ, बहुत सारे मित्रों को नहीं पता होगा। और आपको पता है उसकी पेनल्टी 125 में निर्धारित है, वो है अप टू 50,000 रुपए। अब बताइए, जरा सा पेपर लगाने का, साइन बोर्ड लगाने का 50,000 रुपए पेनल्टी लगा सकता है, जब आपसे नेगोशिएट करेगा तो बताइए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 50,000 रुपए एक की लगाएगा। और सर रूल 55, 56, 57, 58 ये मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रूल्स हैं।
सारे इसको बड़ा ध्यान से देखें, छोटी से छोटी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के ऊपर डिपार्टमेंट आपको पेनल्टी लगाएगा, चाहे वो 122 में लगाए चाहे 125 में लगाए। सो इसलिए आपको उन सब चीजों को पहले से तैयार रखना है। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, एक छोटा सा रूल बताता हूं कि रूल 56 में क्या लिखा है कि अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है, उस सर्विस प्रोवाइडर ने व्हाइल प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विस, गुड्स कितने कंज्यूम किए हैं उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बताइए हम में से कितने लोग कर रहे हैं? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, हम गुड्स स्टेशनरी यूज करते हैं और बहुत सारे गुड्स यूज करते हैं, क्या उसका रिकॉर्ड हम रखते हैं? नहीं रखते हैं। So that is also a problem. Although you may ask me, and I would also be little, jittery to answer. It would be little difficult for me to answer. How would you keep the record of those goods used while providing supply of services? But still, that is a compulsion that is required by the law. So pre-audit जरूर कराएं. Never say to the officers that the data is with somebody else, because data is required. The books of accounts and records are required to be kept at the principal place of business and every additional place of business whichever is added to your registration certificate. So never say this. Always manage accordingly and provide complete cooperation to the tax authorities, because of course provide proper infrastructure. ऐसा नहीं है कि वॉशरूम के साथ वाली कुर्सी दे दो उन्हें कि भैया बैठ जाओ यहाँ पर. Don't do that. Provide proper infrastructure. एक सेपरेट रूम दीजिए, चाय टेबल कुर्सी, ऑफ कोर्स चाय पानी तो पिलाएंगे आप, टेबल कुर्सी दीजिए, ये सब आप प्रॉपर दीजिए, so that it is appreciated, it is demonstrated that cooperation is provided. Non-cooperation can also result in some bad consequences. I would say the consequences may not be very good. So then it is interesting. Art of seeking adjournment and seeking extra time. Do not rush to provide any information. When unsure, seek some time. Do not be, before sending any information, any document, do not be in rush. Okay, ये तो दे दो यार, ये तो confirm है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई problem. Don't do that. Try to be a little more artistic in this. And seeking adjournment is also a very important thing. आपने वो फिल्म देखी थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गोविंदा की, वकील था उसमें, वो जब भी वो एडजॉर्नमेंट लेता था तब कुछ नई कहानी करके आता था और केस को पलट देता था. That's what I always try and appreciate and request everyone, that adjournment should be at a place where you give your heart and soul to the case. Do not contest it lightly. Give heart and soul to the case. I tell you friends, whenever I appear before any particular case, unless 100% facts of the case I do not know, I don't appear. Unless the entire bottleneck where the officer can struck me, can stop me, unless I don't know, I don't appear. I do not appear without the valid power of attorney also. Normally we don't take that. And of course this is not adjournment वाला यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, बट शो कॉज नोटिस में ध्यान रखिएगा मित्रों. मैं छोटी छोटी चीजें लिंक करता जा रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट तो शो कॉज नोटिस ही है. तो आपका एक पंथ दो काज हो जाएंगे. सतीश सर को दोबारा इनवाइट नहीं करना पड़ेगा मुझे शो कॉज नोटिस के ऊपर डिलिबरेशन के लिए. अगर बुलाना चाहें बुला लें, हम तो छोटे भाई कभी भी आ जाएंगे. लेकिन भाई साहब कह रहे हैं पहले ईट लगा रहा है अगले प्रोग्राम की अपने है. मेरा ही मानना है स्टडी सर्कल सबका है. जितने यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, जो डेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जो नहीं भी आ रहे हैं, उन सबका है. जी 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 जी, धन्यवाद सर. हम कभी भी आ सकते हैं, मतलब कहने का यही है. Yes. धन्यवाद सर, धन्यवाद सर. सो फ्रेंड्स, जब आप शो कॉज नोटिस में आप एडजॉर्नमेंट लें तो आपको मैं बता दूं 75(3) के अनुसार आपको केवल 3 एडजॉर्नमेंट मिल सकते हैं पूरी प्रोसीडिंग्स में. ध्यान रखिएगा आपको. इसका अर्थ है कि एडजॉर्नमेंट कब लेनी है, बड़ा सेंसिबली, टैक्टफुली, प्रॉपरली प्लान करके एडजॉर्नमेंट लेनी है. देयर कुड बी पॉसिबिलिटी व्हेन यू डोंट सीक एडजॉर्नमेंट बट स्टिल इट इज डेफर्ड. साइनेडाई होता है ना कोई चीज, साइनेडाई आप कर सकते हैं, उसको आप डिस्कशन को आप ऐसे
कहते हैं ना कि ऐसे हसीन मोड़ पर लाकर छोड़ो कि वो भी उससे आगे बढ़ना ना चाहे. So you have to be present in the situation and you have to keep analyzing the data which is available, data which is seeking. I would be giving you more info about it little later. हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम है, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पर थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं. Then provide as much as information as possible in one go rather than making multiple submissions. Submit complete information regarding any specific issue and not in parts. If he is asking you the balance sheet, now you provide balance sheet today, director's report next time, auditor report next time. Don't do that. If he is providing you sales information, you are providing B2B supply today, B2C supply 10 days after, and export supply 15 days after. Don't do that. Don't give the relevant information, a particular specific issue information in parts. Give in one go. And my dear friends, I must tell you, presentation is the key. Of course, अभी इस immediately 10 points के बाद मैं आपको एक बहुत broader picture देने वाला हूं, लेकिन मैं आपको एक बड़ी specific बात बता दूं मित्रों. Although it is getting recorded, but I must tell you because I have to discharge the responsibility. Friends, even if you do not know the complete law, even if you do not know the complete facts, but when you present it well, when you present it in loop, when you present your verbal statement, verbal submissions in well, when you present your written submissions in properly managed and a proper paper book is prepared, a proper covering letter is prepared, sequence is arranged, flagging is there, tagging is there. And when the auditor reads or the officer in charge reads, he actually gets a feeling of your interest in getting that audit conducted. Take my words, the moment you would express that you are very much interested to get this audit conducted, 25-30% his problems, his mindset is changed towards. Take my words, he starts believing you, and that's what is the real. Any auditor whenever comes to me, we have been getting audited, we have been doing audits, so it is important about to create the trust between the auditor and the auditee. When you give your respectfully submissions, आप उसको prompt replies दीजिए, आप नहीं जवाब दे पा रहे, उसको ये बोल दीजिए, सर मैं अभी इस इंफॉर्मेशन को गैदर करने में मुझे समय लगेगा, आपको 10 दिन लगता है, आप उसे 20 दिन बोलिए, 15 दिन बोलिए, नथिंग टू वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसे रिप्लाईज दीजिए, आप उसे प्रॉपरली लूप में लेकर चले, नेवर अवॉइड. मैं आपको बता रहा हूँ सतीश सर, आपको यू आर नाउ इन प्रैक्टिस फॉर ऑलमोस्ट 30 years. जहां पर भी हमने एडजुडिकेशन के टाइम पर, ऑडिट के टाइम पर लूजली सबमिशंस दिए हैं, इररेगुलरली असेसमेंट्स कराई हैं, वो असेसमेंट्स खराब हो. जहां भी हमने लग के असेसमेंट्स कराई हैं, वो असेसमेंट्स. Just to inform Rajinder here, whenever I am representing any case in income tax or GST, wherever, and whatever submission I prepare, I at least read 3 times after final draft is ready. Very wonderful, sir. Your this point number 5, that provide as much information as possible. I reply on all the points in one go, except which are not available as of now. Absolutely. And to which also I reply, like bank statement, if it is required and it is not available, bank may take a time. So I also always write, though we are in the course of getting this information from bank, however, which may take time, which is taking time. However, you are all free to directly ask from the bank. Absolutely, wonderful. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इस तरह का external document तो they can always obtain it themselves. Yeah. So although they, यहाँ पर GST audit में ऐसा नहीं होगा, उनके पास powers भी ऐसी नहीं होती हैं, but yes, you should write it. Okay, moving ahead. So if insisted upon, for any payment of tax on matters subject to litigation, always make payment under protest and mention same in DRC. मैं मित्रों आपको इस पर्टिकुलर 6 और 8वें पॉइंट के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देने वाला हूं. भूमि एसोसिएट का 18 फरवरी 2021 का रीसेंट जजमेंट है, गो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट.
मित्रों, अगर आप मेरी बात माने, इस जजमेंट को एक बारी पढ़िए। 3-4 पेज का एक इंटरिम ऑर्डर आया था, एक फाइनल ऑर्डर आया था, टोटल 4-5 पेज का जजमेंट है। लेकिन मित्रों, डीजीजीआई ऑफिसर्स को इस जजमेंट के माध्यम से बहुत ज्यादा जो है उनको समझाया और सुनाया गया है बाय द ऑनरेबल। सर हुआ क्या कि डीजीजीआई ने इंस्पेक्शन किया, सर्च किया इनफैक्ट, और वहीं पर एट द टाइम ऑफ सर्च इटसेल्फ उन्होंने उसको कहा कि ये टैक्स जमा कर, फोर्सफुली टैक्स जमा करवाया डीआरसी 03 से। It was being represented by my good friend Avinash Poddar from Surat, and he got the relief also for the taxpayer. And the taxpayer went to the Honorable High Court. Honorable High Court said, and sir, they have directed the CBIC. अब देखिए क्या होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस जजमेंट के बाद और इनफैक्ट एक और जजमेंट के बाद ऑनरेबल हिमाचल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी गया जजमेंट। सेक्शन 83 के ऊपर था, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, बैंक अकाउंट अटैचमेंट के ऊपर। मतलब क्या है सर, वही ना, मैं बंदर की तरह एक्ट करना शुरू कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो एक सेक्शन से दूसरे, दूसरे से तीसरे। तो सर हुआ क्या कि इस जजमेंट में डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा बताया गया, सुनाया गया और कहा गया कि भैया देखिए ऐसा है, पहली बात तो इन अफसरों को बुलाओ हमारे पास अगले हियरिंग पर, हम इनसे मिलना चाहते हैं। तो सर डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीजीआई अपेयर हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और उनको बताया गया, समझाया गया कि भैया ऐसा है, जिस दिन आप सर्च करें उस दिन अगर टैक्स पेयर तैयार भी है टैक्स पे करने के लिए, तो भी आप उस दिन टैक्स नहीं लेंगे, आप उससे अगले दिन टैक्स लेंगे, नेक्स्ट डे when you have conducted the search or inspection. 67(1) में inspection, 67(2) में search and seizure consequent. Then साथ ही साथ सीबीआईसी को एक कहा गया सर कि आप इसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस बनाएं, और कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस वहां पर डिवाइस की कि अगले दिन पैसे लेंगे, आप उस दिन उसको फोर्स नहीं करेंगे, भले ही वो विलिंगली जमा कराना चाहता। तो मित्रों, इस भूमि एसोसिएट का भरपूर फायदा उठाएं। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये जजमेंट की कॉपी होनी चाहिए, जहां भी सर्च इंस्पेक्शन ऑडिट नजर आए उसको इसकी कॉपी पकड़ा दो, कुछ मत बोलना। हर एंटी इवेजन और सीनियर ऑफिसर इस जजमेंट के बारे में जानता है, डीजीजीआई ऑफिसर इस जजमेंट के बारे में जानता है, छोटे से छोटा ऑफिसर भी इस जजमेंट के बारे में जानता है। उसको इसकी कॉपी दे देना भूमि एसोसिएट की कि सर जी मैं तो छोटा आदमी हूँ, ये ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, बाकी आप देख लो जैसे भी करना है आपने। उसके बाद वो आपको कहेगा कि ठीक है भाई कैसे करना है तू बता, फिर वो आपको समझाएगा कि भाई देख ले, तेरे को दिक्कत होगी, अपने आप जमा करा दे, लेकिन फोर्स नहीं करेगा। फोर्स करता है तो ऑफ कोर्स आप क्या करो सर, कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि ऑफिसर्स जो है इसको भी अबव बोर्ड ले लेते हैं। उसमें मैं आपको बता दूं क्या करना है आपने। डीआरसी 03 जो वॉलेंट्री इंटीमेशन ऑफ टैक्स पेमेंट है, उसमें आपके पास फैसिलिटी है नोट्स डालने की कि आप कौन से अकाउंट में, मतलब ऑन व्हाट अकाउंट यू आर मेकिंग दिस पेमेंट। तो आप लिख दीजिए दिस अकाउंट, दिस पेमेंट इज मेड इन परसुएंस ऑफ द ऑडिट और इन परसुएंस ऑफ द सर्च, and this is amount is paid under protest without prejudice to my right of claiming this as refund. Simple, ये डालिए without prejudice to the my right of claiming this as refund। आप डालिए इस बात को और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। भविष्य में जब आप देखिए, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा सा फिर इधर उधर चला गया हूं। ऑनरेबल ट्राइब्यूनल्स have yet not been formed under this law। मैं इसको, मतलब मैं सिर्फ बोलने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, but I consider it is highly unfortunate in the history of legal system of the country when 49 months and 12 days are already passed and the grievance redressal mechanism which is provided in the act is yet not been formed, and for every small and small things the taxpayer's plight is increasing with every passing day, and he has to take the recourse of Article 226 by way of writ and reach to the doorsteps of the Honorable High Courts, jurisdictional high courts. Most unfortunate, highly unfortunate, highly condemnable,
I consider it a black situation, black day in the history, legal history of this country. I always say that tribunals is the backbone of the judicial system, the grievance redressal system. आप याद कीजिए सर्विस टैक्स ट्राइब्यूनल, सी स्टैट जो होते थे, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स ट्राइब्यूनल जो होते थे, आज भी वो कितने ब्यूटीफुली फंक्शन कर रहे हैं. इनकम टैक्स अपीलेंट ट्राइब्यूनल्स कितने ब्यूटीफुली फंक्शन कर रहे हैं. कितना बढ़िया जजमेंट डिलीवरी सिस्टम है, कितना बढ़िया विजडम इंस्टॉल्ड है उनके अंदर. अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा, हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा. आप 100 लोग यहाँ जुड़े हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के अंदर बोलिए, मशीनरी में बोलिए, मिनिस्टर्स के सामने बोलिए इस बात को कि ये जो गवर्नमेंट ने अभी तक ये जो ट्राइब्यूनल्स फॉर्म नहीं किए हैं, ये ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ लीगल रेमेडीज available to the taxpayer वो है. और it is not going a good image of the country on the world map also, not at all. So please take this matter forward. I am a very small person, I can always do this only. जहां तक मेरी आवाज जाती है मैं उसको पहुंचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप मेरे मित्र हैं, आप सब हाईली कनेक्टेड लोग हैं, आप इसको आगे लेकर जाइए. चलिए जी. Then friends, keep parallel record of all documents submitted to the department. मतलब एक छोटे से छोटा कागज भी जो आपने अपने सिस्टम से ही प्रिंट निकाला है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल देखिए जी, जीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर, जीरो टॉलरेंस. आप केस लॉग मिस कर दो कोई बात नहीं, मैं आर्गुमेंट्स में निकाल दूंगा केस को फिर भी, लेकिन अगर आप पेपर बुक एज इट इज वर्बिटम पैरेलल कॉपी नहीं बनाते, दैट इज जीरो टॉलरेंस, नॉट एक्सेप्टेबल. सो प्लीज डू दैट. नॉर्मली हम लोग की सबसे बड़ी गलती करते हैं. Submit to the point and appropriate reply. Avoid vague and incomplete replies. Take help of consultant wherever necessary. Of course, it is invariable. Help of consultants is indispensable. Give point-wise reply. ये हम सारी बातें कर चुके हैं आपके साथ. चलिए. Now we are moving towards. सर यहाँ पर हम कुछ सवाल ले लें क्या मित्रों के, अगर कुछ है तो. है नहीं कोई भी चैट बॉक्स में. अच्छा. ये सिर्फ All have become wiser. सिर्फ मेंबरशिप नंबर भेजते हैं कि मेंबरशिप नंबर दे देते हैं, सीपीआर आएंगे, अपने आप सब चीजें सवालों के जवाब मिल जाएंगे. ऐसा है सर? नो कमेंट्स. सर आप थोड़ा ना इलेक्शन लड़ रहे हैं सर, आप तो बोल ही सकते हैं. देखो, जिसने ज्ञान लेना है वो सुनेगा, जिसने नहीं लेना वो नहीं सुनेगा. नहीं सर, हमारे सारे मित्र सुन रहे हैं आराम से. इट वाज ऑन द लाइटर साइड ओनली, थोड़ा सा माहौल हल्का सा बना रहता है बस, और क्या. चलिए जी, मूविंग अहेड नाउ. चलिए, सवाल अभी नहीं है हमारे, लेकिन हम जगजीत हैज आल्सो जॉइंड. वेलकम जगजीत. जगजीत जी, सत श्री अकाल. सेटअप एक्सेप्ट करो. सर नजर नहीं आ रहे जगजीत जी. अभी वो कनेक्टिंग टू ऑडियो, सो अच्छा इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग कनेक्टेड. अच्छा. आपने एंथुसियास्टिकली पहले इंट्रोड्यूस. Yes. आपके को कन्वीनर हैं सर, आप तो सर मतलब ध्यान रखना ही पड़ेगा. ध्यान रखना पड़ता है जी. चलिए, सो मित्रों आगे बढ़ते हैं. तब तक जगजीत जी ज्वाइन कर जाएंगे हमारे, और फिर थोड़ा सा अब हमारे पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं. बस हमारी डिस्कशन अब इन 3 डॉक्यूमेंट्स पे हुई, बाकी सब हमने पढ़ लिया. आपका कोई भी सवाल है अपने क्वेश्चन आंसर में Q&A में छोड़ दीजिए, हम सतीश सर अभी जवाब देंगे. वेरी गुड इवनिंग सर. जगजीत सिंह नमस्कार सर. गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सभी को. गुड इवनिंग सर सभी को. और कॉपी टू ऑल. ਤੁਸੀਂ बोलते हो ना, मैं थोड़ा आज डायलॉग कंप्लीट कर रहा हूं. नहीं, मैं तो हैंडल विद केयर भी बोलता हूं. मैं टेक केयर नहीं बोलता, हैंडल विद केयर. हैंडल विद केयर. सो बस अभी फ्री हैंडल विद केयर, बस आगे नहीं सर, और एक्सप्लेनेशन नहीं. तो बड़ा लिमिटेड है सर. अभी बस मेरा वो कंप्लीट हुआ चंडीगढ़ का प्रोग्राम, बस वहां से सीधा ज्वाइन किया सर. क्या बात, चंडीगढ़ है आप सर अभी? चंडीगढ़ का प्रोग्राम was to speak on one webinar organized by Chandigarh Study Circle, Chandigarh branch. सर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसएमई के ऊपर बोल रहा था, बस कंप्लीट किया. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर. स्वागत है आपका. सतीश सर बहुत मिस कर रहे थे आपको. थैंक यू सर, थैंक यू. तो सतीश सर आप देखिए, यहाँ पर अभी फ्रेम पे भी नजर आ रहे हैं 2 पगड़ियों के बीच में.
चलिए मूविंग अहेड फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं. मैं इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का आई थिंक आई हैव shared my screen only, so these 3 documents would be opening up. स्क्रीन नजर आ रही है सर आपको? स्क्रीन आ रही है पर वो अभी ओपन नहीं हुए गूगल. हाँ जी हाँ. थोड़ा ये सिस्टम स्लो है ये वाला. एक्चुअली मेरा यूजुअल सिस्टम एक हमारा जीएसटी आज तक चलता है हर 12 तारीख को दीपक बोलूसरिया जी के द्वारा. तो पहले मैंने उसको शुरू कराया था, फिर यहाँ आ गया, तो वो मेरा रूटीन सिस्टम वहां पर बिजी. मित्रों ये देखिए जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑडिट मैनुअल, डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ ऑडिट. अभी आया नहीं है, विजिबल नॉट विजिबल एज विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है. नहीं. अच्छा एक सेकंड, स्क्रीन तो मेरी, आपको स्क्रीन शेयर उसकी करनी पड़ेगी जो आपने अभी ओपन किया गूगल ड्राइव. चलो जी एक मिनट सर, एक सेकंड सर. आई थिंक जस्ट अ सेकंड. मैं स्टॉप करके अभी ये सर मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, पीपीटी शेयरिंग नहीं करूंगा, तो सब दिखेगा आपको. अब दिख रहा है जी? आप देख रहे हैं जी. चलिए सर, तो ये है जी हमारा जीएसटी ऑडिट मैनुअल. ये है जी आपका 138 पेज का एक मैनुअल है. अब मैं आपको अगला डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ. तीनों डॉक्यूमेंट इकट्ठे खोल दूंगा आपके लिए. पहले ये खोलता हूँ जी. ये तीनों मेरी पीपीटी जब आपको मिलेगी तो तीनों डॉक्यूमेंट इनबिल्ट आएंगे उसमें. सो गूगल ड्राइव लिंक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जी हमारा ये भी नजर आ रहा है जी अब डायरेक्टर ऑडिट का. बहुत बढ़िया. तो ये सर ऑडिट प्लान फॉर द ईयर 1920 है. ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट ने निकाला है. सारे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स को निकाला है, चीफ कमिश्नर्स ऑफ जीएसटी को, और 25 जून 2019 को निकाला है. इसके अंतर्गत काफी हमारे पास डायरेक्शंस मिलेंगी हमें. उसके बाद एक ये डॉक्यूमेंट जो जी है, ये जो है आपका बेसिकली ये वाला डॉक्यूमेंट कर्नाटका जीएसटी ऑडिट मैनुअल है. ये मैंने दे दिया आपको, लेकिन मैं आज की डिस्कशन जो है वो बेस्ड रखूंगा डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट के द्वारा जो मैनुअल निकाला गया है उस पे. ये स्टेट का एक ऑडिट मैनुअल है, स्टेट गवर्नमेंट का, कर्नाटका का. ये 171 पेज का है. तो अब इसमें से करना क्या है हमें, ये ऑडिट मैनुअल क्यों देखना है, ऑडिट मैनुअल का हमारे लिए क्या रेलेवेंस है. सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे जी मित्रों. एक सेकंड, ये अभी स्क्रीन बंद हो गई क्या मेरी? अभी स्क्रीन चली गई. हाँ ये क्या जी, अब आ ये सबसे पहले देखेंगे जी. अब देखिए सर, मैं सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूँ, ये तो आप पढ़ लीजिएगा अपने आप. ये देखिए जी, इन्होंने कहा कि हमारी जो यूनिट्स हैं वो इस तरह से डिवाइड होंगी. ये देखिए जी, हमारी जो है मीडियम स्मॉल लार्ज जो यूनिट्स हैं, हमारी स्मॉल मीडियम और लार्ज यूनिट्स जो अप टू 10 करोड़ की हैं, वो हमारी स्मॉल यूनिट्स हैं. और 10 से 30 करोड़ तक की या 40 करोड़ तक की स्मॉल यूनिट्स हैं, और अबव 40 जो है वो लार्ज यूनिट्स हैं. अब ये उन्होंने कहा जी लार्ज यूनिट्स में 7 वर्किंग डे लेंगे, मीडियम में 5 और स्मॉल में 3. चलिए ठीक है, वो तो बोला गया है, लेकिन मैंने आपको बता ही दिया कमेंसमेंट, प्रोसीडिंग्स एंड कंक्लूजन की क्या कहानी है पूरी. चलिए जी आगे दिखाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बातें. और क्राइटेरिया भी देखेंगे अभी कि किस रिस्क पैरामीटर्स पे वो हमें सेलेक्ट कर रहे हैं. ये लीजिए, ये एनेक्शर है जी. इस एनेक्शर के अनुसार इन्होंने टोटल जो है 48 जोन्स निकाले हैं जी. कमिश्नरेट्स हैं 48. अब जैसे अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम दिल्ली पकड़े यहाँ पर, तो दिल्ली ये रहा जी. दिल्ली में 2 ऑडिट है, ऑडिट 1 एंड ऑडिट 2. नोएडा भी हमारे यहाँ है, नोएडा का भी ऑफ कोर्स हम देखते हैं यहाँ पर.
दिल्ली में यहाँ पर 60 आपकी ऑडिट ग्रुप्स हैं, 60 ऑडिट ग्रुप्स हैं सर, ये देख रहे हैं आप, 60 ऑडिट ग्रुप्स हैं। इसमें ऑडिट ग्रुप्स में लार्ज मीडियम स्मॉल को कितने कितने ग्रुप्स हैं वो उन्होंने डिवाइड किए हैं, 12-12, 9-9, 6-6। और ये देखिए ऑडिट्स जो होने हैं, ये ऑडिट्स होने हैं, ये लार्ज के हैं, ये मीडियम के हैं, स्मॉल के हैं, इतनी एंटिटीज के ऑडिट अभी उन्होंने डिजाइन किए थे। तो ये देखिए जी, ये लगभग 1400 एंटिटीज ये हो गई, 14-14, 2800, लगभग 3000 ऑडिट आप मोटा मोटी पकड़ कर चल सकते हैं कि 3000 ऑडिट उन्होंने दिल्ली में करने हैं। ठीक है जी, ये 19 का डाटा है। अब 2019 में क्या हुआ था कि डेटा सारी एक्सटेंड हुई थी एनुअल रिटर्न फाइलिंग की। जीएसटी ऑडिट जो है वो प्रिंसिपली डिपार्टमेंट तब कंडक्ट करता है 65 में जब एनुअल रिटर्न फाइल हो चुकी होती है। जब तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं होती है उस पर्टिकुलर ईयर का वो ऑडिट कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि एनुअल रिटर्न टेक्निकली देखा जाए तो एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है टू करेक्ट ऑल द डाटा पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो अगर वो ऑडिट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुई है तो ऑडिट वहां नहीं कंडक्ट होता। लेकिन अब आप देखिए 19-20 तक की सारी एनुअल रिटर्न्स की डेट जा चुकी है और 20-21 की भी एनुअल रिटर्न की डेट आपके सामने आ चुकी है। और अब आप मानकर चलिए कि दिसंबर तक हो सकता है और थोड़ा सा स्लो रहे ऑडिट्स का, लेकिन अदरवाइज आप अपने यहाँ खुद के जोन, क्योंकि मेंबर्स हो सकता है पूरी कंट्री से जुड़े हो इस प्रोग्राम में, तो यहाँ पर आपके पास ये जो अभी 48 जोन कमिश्नरेट्स हैं उनके हिसाब से ये ऑडिट टीम्स डिजाइन की गई है। सबसे देखिए 40 टीम्स हैं अहमदाबाद में, और सबसे ज्यादा उसके बाद 60 टीम्स हमारे दिल्ली में है। मुंबई में 90 टीम्स हैं, देखिए सर 90 टीम्स है केवल मुंबई में। तो सबसे ज्यादा जो है हमारी जो टीम्स हैं वो मुंबई में है, मुंबई 1-2 और मुंबई ऑडिट 1-2-3, मुंबई ऑडिट 1-2-3। कोलकाता में भी 2 टीम्स हैं दिल्ली के माध्यम से, दिल्ली की तरफ। तो ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर डिवाइस्ड है कि किस तरह से ये लोग टीम्स को डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें नीचे देखिए जरा आगे, ये देखिए सर लोकल रिस्क पैरामीटर्स। कई लोग मित्र मुझसे पूछते हैं भैया क्या तरीका है इनका सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन का तरीका जो है अब मैंने आपको ये जो तीनों डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट है। अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर मुझे ये पता हो कि डिपार्टमेंट क्या करने वाला है तो अकॉर्डिंगली मैं चल सकता हूं। जैसे कि सतीश सर, जैसे स्कूटनी गाइडलाइंस होती है ना हमारी इनकम टैक्स में, कि अगर हम स्कूटनी गाइडलाइंस पढ़ लें रिटर्न फाइलिंग से पहले तो हम 80%, 70% मैनेज कर जाते हैं कि हमारी स्कूटनी इनकम टैक्स की वो रेड फ्लैग्स रेज ही ना हो। तो रेड फ्लैग्स क्या क्या है यहाँ पर देखिए, बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं। अब जैसे देखिए एग्जेम्पशंस, अगर आप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं दैट इज आल्सो रेड फ्लैग। अगर आप लॉस में हैं दैट इज आल्सो रेड फ्लैग। ठीक है जी। उसके बाद स्पेसिफिक सेक्टर्स, देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक सेक्टर्स देखिए इन विच टैक्स पेयर ऑपरेट्स। टिपिकली हाई रिस्क एक्टिविटीज इंक्लूड रेस्टोरेंट्स, होटल्स, अपार्टमेंट रेंटल्स, प्रोफेशनल्स, कार रेंटल्स, स्पेयर पार्ट्स फॉर व्हीकल्स, केमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल। तो ये रिस्क, हाई रिस्क एक्टिविटीज हैं आपके पास। होटल्स आ गए, रेस्टोरेंट्स आ गए, रेंट, प्रोफेशनल्स, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल पूरा हो गया। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी हाई रिस्क एक्टिविटीज में ही, हाई रिस्क सेगमेंट में ही आती हैं। इवन अगर टैक्स पेयर के मल्टीपल ब्रांचेस हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज हैं, और वो भी हाई रिस्क उसमें आता है, पैरामीटर्स में आता है। ये सारे पैरामीटर्स देखिए आपके पास हैं। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं सतीश जी? नहीं, मैं जरा क्योंकि बहुत बारीक है ना वो, थोड़ा पास आके देख रहा हूँ। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ सर। जी, नाउ थोड़ा सा बेटर हो गया होगा जी। तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं फ्रेंड्स, जिसके बेसिस पे हमें वो सेलेक्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारे हैं, टर्नओवर का रेशियो क्या है, लोन मतलब बैलेंस शीट एसेस कर रहा है तो वो टर्नओवर टू टोटल एसेट, ये रेशियोज निकाल रहे हैं। देख रहे हैं आप, रेशियोज भी डिटरमाइन करेंगे कि आपका सिलेक्शन क्या होना है। मतलब आप देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स स्ट्रक्चर सिस्टम। Unless you don't pay tax, you have two reasons. You can have probably two reasons when you are not paying cash tax. These two reasons के अलावा मुझे तीसरा रीजन बता दीजिए तो मैं अपनी वैल्यू एडिशन खुद कर लूंगा। पहला रीजन, यू आर सेलिंग इन लॉस, अंडर वैल्यू। दूसरा रीजन कुड बी that you are कैरिंग ह्यूज स्टॉक्स,
then only you will be able to justify the situation you are not paying in cash tax. Otherwise everyone, because value addition is there, चाहे मैं कह रहा हूँ 0.01% का भी value addition है आपकी turnover पे, you have to pay cash tax. If you are carrying huge stocks, then only it might possible. Otherwise, or you are incurring losses, you are selling under value, less than the purchase price. Although that is not unlike the VAT laws, selling at less than the purchase price was not permissible. Here it is not restricted. You can justify a particular product is, I am dealing in computers, I am dealing in mobiles, I am dealing in electronics. Something is now outdated. Something is being replaced with a higher version of a particular product. So I am selling it at a lower cost, or something is completely become scrapped. So you have to justify that particular issue. Then only you can sell it at a price less than the purchase price. So moving ahead. So I think these are the things. Now हम लोग अब बात करते हैं मित्रों, हमारे पास जो मैनुअल है उसकी बात. Just a second. Yes, please. This is the manual we were referring to. फ्रेंड्स, अब देखिए 138 पेज का मैनुअल है. अब इस मैनुअल को आपके साथ शेयर करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ये है, ये मैनुअल डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके बेसिस पर ही एक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी. Now what are we supposed to do? We also have to read this manual, understand on what grounds, what all they are going to check in my case, how is it to be done, what all documents he would be requiring, और कौन से डॉक्यूमेंट से वो क्या इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. दिस ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और इसी मैनुअल में लिखा हुआ है मित्रों कि कौन से डॉक्यूमेंट से वो क्या इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. मैं आपको पहले जो है इसका इंडेक्स टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ाना चाहता हूं. इंट्रोडक्शन है लीगल अथॉरिटी. सबसे पहले तो बताएगा कि आपके पास लीगल अथॉरिटी क्या है, ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, उनके हिसाब से हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम किस बात के लिए ऑडिट कर रहे हैं, मैनेजमेंट कैसे करना है जीएसटी ऑडिट का, सिलेक्शन कैसे करना है रजिस्टर्ड पर्संस का, ऑडिट प्रिपरेशन और वेरिफिकेशन, अपने यहाँ ऑडिट प्रिपरेशन कैसे करनी है, और डॉक्यूमेंट लेने के बाद वेरिफिकेशन कैसे करनी है, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है और फॉलो अप कैसे करना है, रजिस्टर्ड पर्सन की मास्टर फाइल में वो क्या क्या डालेंगे और ये मास्टर फाइल परमानेंट बन जाती है उनके पास. So you need to be careful while giving any document pertaining to the master file also. So that is why I am telling you, this is the insight of the counterparty strategy. And the moment you would come to know, this is the blessings. This document is a blessing to us. It is in public domain. And one more thing, you must have not much in Delhi, but let me tell you, other than Delhi, they have started doing it extensively, this GST audit. Not much in Delhi, but in Delhi also they have separately constructed a different department at Rajendra Bhavan, Deen Dayal Upadhyay Marg. Of course, it is my Bhavan, so I know it. I mean to say, it is named after me. मतलब मेरा नाम coincide करता है उससे. That is the question. So friends, so you need to understand that what they are going to do. So you have to prepare your course of action according to that. फिर वो documents desk review के लिए ratio analysis कैसे करेंगे, comparison chart, questionnaire, audit plan, working papers, ये सब उन्होंने यहाँ पर बताया है. देखिए कितना local risk parameters, checklist for audit of traders, checklist for composition dealers, उन्होंने आपको सारी चीजें हैंडी दे दी हैं. अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. देखिए सारी चीजें 136 पेज की तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा 138 पेज की आपके साथ, लेकिन यस मैं कुछ बातें आपके साथ जरूर करूंगा यहाँ पर. और लास्ट के 10-15 मिनट फ्रेंड्स मैं आपके साथ जो है
क्वेश्चन आंसर करना चाहता हूं कि क्या क्या सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं। कुछ भी आप सवाल, इवन आप जीएसटी से संबंधित भी कुछ भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहें, आप मुझसे पूछ सकते हैं, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट। अच्छा चलिए, अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ, बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट रीडिंग व्हाट इज रिटन इन द ऑडिट मैनुअल, फ्रेंड्स, for doing this departmental audit, first thing was required, you must know about 65 and 101, section 65 read with rule 10. Now second thing, you must know this internal working of the department. Third thing, which is most important, and that is the knowledge of entire act and rules. Unless you do not know the knowledge of entire act or rules, coupled with the latest judgments by the judiciary, the various circulars by the department, I'm sorry, it is not possible to get this audit done, because department is going to be equipped with, and let me tell you, if I would be the department now, recently we did a program called Jugalbandi, GST audit के ऊपर जुगलबंदी थी, I represented the department. Very soon, I think on 19th or 20th August, I am going to represent the assessee now. Of course, it is a MOOC kind of a presentation. I am going to represent the assessee now in departmental audit. Earlier, I represented the authority, the department. Now I am going to represent the taxpayer. So if I would be the authority now, let me tell you, what would I do? Simple. Whatever credit is there in your profit and loss account or in your bank account, I would tax it. As simple as that. That is a supply. As simple as that. Whatever is there in credit side of your bank account or profit loss account, I would tax it. The balance sheet part, I am telling you, हम बैलेंस शीट तो दे दो यार, नोट्स टू द अकाउंट दे दो यार, डायरेक्टर रिपोर्ट दे दो, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है भाई, इसको तो रोक ही नहीं सकते, माना आपकी बात, रोक नहीं सकते, बट सर इन डॉक्यूमेंट से ही, इस मैनुअल में इतनी सारी बातें उनको बताई गई हैं कि इस डॉक्यूमेंट से ही, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जगजीत जी, डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, आप तो मास्टर हैं इंडेस ये वो क्या और क्या नहीं, हम तो बस देखिए क्या है कि बस ऐसे ही है ना, जीएसटी पढ़ते रहते हैं, बंदर की तरह ही बैठे हैं, एक ही पेड़ पे लटके हुए हैं। बड़े भाइयों का आशीर्वाद है सर, अरे होता है। ये तो सर हमेशा आपको हमारा आशीर्वाद रहेगा सर। दोनों बड़े भाई बैठे हुए सर, वो हमें आशीर्वाद देंगे तभी हमारा बेड़ा पार होगा, और तुम्हें भी देंगे तभी तुम्हारा भी होगा। हाँ, सतीश जी मुस्कुरा रहे, कह रहे पब्लिक में वोट मत मांगो हमसे, सर हमने आशीर्वाद मांग रहे हैं सर आपसे जी, कह रहे कुछ नहीं, नो कमेंट्स। हाँ चलिए, सो अब आप जो सर, आप डायरेक्टर्स रिपोर्ट देखते हो, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में सर लिखा होता है फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो, सिंपल है, बड़ी कॉमन इंफॉर्मेशन है, सदियों से देते हुए आ रहे हैं हम। अब एज एन ऑफिसर मेरे को क्या पता लगा कि भाई साहब आउटफ्लो है, इनफ्लो है, इनफ्लो है तो एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो तो रिफंड लिया है, रिफंड लिया है तो रिफंड की कैलकुलेशन चेक करेंगे, देखेंगे, रिफंड तो वैसे भी मुझे अपरेंटली पता लग जाएगा। इनफ्लो है, आउटफ्लो है, तो भाई साहब इसका मतलब पैसे बाहर गए हैं, तो आपने कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज भी की है। अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो कोई बात नहीं, आपने आईजीएसटी पे कर दिया होगा, कस्टम पे फॉर द डोमेस्टिक क्लियरेंस। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब मुझे बता दो कौन सी सर्विसेज आपने इस आउटफ्लो को जस्टिफाई कर दो कि फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो क्या है। कुछ नहीं देखूंगा, किताब नहीं देखूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो जस्टिफाई कर दो। और आपको पता है मैं क्या चेक करने वाला हूँ, आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में रिवर्स चार्ज चेक करने वाला हूँ कि भैया रिवर्स चार्ज पे किया कि नहीं किया, सिंपल। और मैं आपको बता दूं सर 60% केसेस में रिवर्स चार्ज पे नहीं हो रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे, पता ही नहीं लगता है, ना कंपनी को पता लगता है, ना ऑडिटर के सामने कई बार होता है, ऐसी सिचुएशन होती है। मेरे लिए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट जो भी है ना सर, वो सब सप्लाई है, सब सप्लाई है, आप जस्टिफाई करो वो सप्लाई नहीं है। एज एन अथॉरिटी, जब मैं व्हेन आई go into the shoes of an authority, I always consider, and since day one Satish sir I have been saying this in GST, and sir I am in favor of one statement sir, I favor one principle sir,
every supply is taxable, no exemption, provided it should be supply first. The test of supply under section 7 should be passed. Every supply should be taxable, no exemption. And every input tax credit should be available, no restriction. B2B, B2B, B2B. That should be the policy. Of course, although considering the pleasing policy, the popular policy, the government has to bring out, or considering the need of the utility of the services or the goods used in the economy and the society, exemptions are required to be provided. I agree, accept that. But exemptions are not good things in any taxation statute. And so as in GST also. मैं कहता हूं हर सप्लाई को टैक्स कर दो, हर इनपुट को क्रेडिट दे दो, B2B में कोई दिक्कत नहीं. कैस्केडिंग जीरो हो जाएगा, टैक्स विल नॉट बिकम द कॉस्ट. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कैस्केडिंग का. ये जो बिजली हमारे यहाँ आ रही है ना जी, पावर 100% जो जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, ट्रांसमिट होती है. इस 100% में से 60% बिजली जो है वो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन होती है. और इस बिजली के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का एक पावर प्लांट पे, अगर आप एक पावर प्लांट लगाते हैं 10,000 करोड़ 8,000 करोड़ का बनता है. मुझे नहीं पता कितने मेगावाट, ये वो थोड़ा मैं उसमें वीक हूं, लेकिन मतलब मैंने इसको पावर ग्रिड के लिए एक बार हमने रिसर्च किया था अर्ली डेज ऑफ जीएसटी में. तो 8,000 करोड़ का पावर प्लांट है और पता लगा 1,500 करोड़ का जीएसटी उसको. एंड दैट 1,500 करोड़ बिकम्स कॉस्ट बिकॉज पावर इज exempted. And that becomes the and the cost of the ITC, which is become cost apportioned over the per unit generation, distribution and transmission, and 60% of the power is industrially consumed, which is B2B. And that is the tax is already added as a cost, and resultantly after markup becomes price which I as a consumer end user pay. इनकम टैक्स हमारे यहाँ 7 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं. अगर किसी को ये बता दिया जाए ना कैलकुलेट करके कि साल में इतना जीएसटी पे करता है, जो 5 लाख की रिटर्न फाइल करता है वो 3 लाख रुपया साल में कम से कम जीएसटी पे कर देता है, तो उसको परेशानी, उसको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी. मतलब इतना जीएसटी पे कर देता हूं मैं, ये 1.25 लाख करोड़ रुपया कैसे कलेक्ट हो रहा है? ऐसे तो कलेक्ट हो रहा है. सो एनीवेज, सो मैं एग्जम्पशंस को बहुत ज्यादा फेवर नहीं करता बिकॉज, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स एज ए पॉलिसी मेकर आई कैन विजुअलाइज. I am also a policy maker at a different level, so I can visualize the challenge before the policy makers for this. Anyways, so every supply is taxed and every ITC availed is ineligible as an authority. Every supply is taxed, every ITC availed is ineligible. Now it is up to you. मैंने आपको चार्ज कर दिया, चार्ज allege करता हूं तो मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने होते हैं. Now Section 135 culpable mental state in every judicial proceedings. The mens rea is assumed and the preponderance of the probability says that you are chore unless you prove you are not chore. So that way, is why, and that is where our Honorable Supreme Court on I think 6th of April 21 has suo motu come out with a one case. And they have categorically said that GST authorities have to come out of this dialogue that all businessmen are thieves. Sure, are thieves. ठीक बात है सर, ये बिल्कुल सही कहा आपने. सर I started doing chartered accountancy in 1996, 97 practically. Since then, what? I can read out what Supreme Court said. Fortunately, this GST appeal which I appeared yesterday is in my front, and I quoted somewhere in this what Supreme Court said. Please, sir, read. If permitted. Please, sir, read, sir. कंटिन्यू करो, मैं तो निकाल लूं जी. So that way the department would allege, they would substantiate their claim, the allegation,
and then it is up to you to refute it, rebut it. So rebuttal is on the assessee, the taxpayer. Of course, we'll be given with the principle of natural justice. Sir, please. So, Honorable Supreme Court Justice Chandrachud on Tuesday, April 6, 2021, observed and remarked the following in a case under GST reached the Honorable Court. The Parliament had intended the GST to be a citizen-friendly tax structure. The purpose of the Act is lost by the manner in which tax law is enforced in our country. The country needs to come out of this tax culture that businesses are all fraudulent. The problem is in the fine print. In order to make the GST Act workable, the message must percolate to the actual authorities. Why the legislation has made certain provisions? What is the purpose behind them? This is a draconian law. So Honorable Supreme Court said this is a draconian law. It needs to be structured. The tax authorities have to abide by the mandate of the law in letter and the spirit of the law. This is a very important issue. That is why we are taking this up, because once we laid down the law, it applies to the entire country. Exactly. So I've quoted this in the GST appeal, which I'm contesting. This is APL 01, you can see. So these kind of quotation always help. I mean, this is coming from the Supreme Authority of India. Absolutely. The Honorable Supreme Court. This always helps. This always helps. So friends, let's now, we are on the verge of conclusion. Sir has rightly given us the direction for this. And friends, this document, as it starts with the meaning of audit, this is the same meaning which is given in the Act, Section 2, subsection 13. Audit implies detailed examination of records, returns, and other documents. There are 4 objectives basically to be achieved. 5th is the largest objective. First 4 objectives are for verification of turnover declared, taxes paid, refund claimed, ITC availed, and assessment of compliances with provisions of laws and rules. तो लास्ट वाला तो अपने आप में दो सबसेक्शन सब क्लॉज 13 सबसेक्शन नहीं कहूंगा, सब क्लॉज 13 में जो है ये आपका it is already there, provided there. So the same definition is being used by the department also while defining the audit in the audit manual. So pervasive पूरा ये 65 वगैरह की जितनी भी बातें हैं वो सारी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मैं आपको थोड़ा सा लास्ट के 5-10 मिनट में मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ. फिर 2-4 क्वेश्चंस जो भी आपके होंगे वो हम आपसे डिस्कस करेंगे. मैं भी लेके बैठा हूँ. हाँ सर, प्लीज सर. तो बस मैं वही सर इसीलिए चाहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर हो थोड़ा सा. ये तो मैनुअल आपके पास पीपीटी में ऑलरेडी पहुंच चुका है. मैं आपको कुछ लास्ट में दिखाना चाहता हूँ. जरा देखिए जरा. देखिए सर, एक ना सर इन्होंने डॉक्यूमेंट कुछ मांगे हैं. ये तो नोटिस है. जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उसके साथ देखिए सर, ये देखिए सर, ये क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं. ये उनकी चेकलिस्ट है, जो कागज उनको चाहिए. इलिस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर स्क्रूटनी एट टेस्ट रिव्यू स्टेज. फॉर गुड्स के लिए एनुअल रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट. डायरेक्टर रिपोर्ट में अब देखिए वो क्या कह रहे हैं. दिस गिव्स इंफॉर्मेशन लाइक ओवरऑल. डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या है? नेचर ऑफ वेरिफिकेशन. नेचर ऑफ वेरिफिकेशन में द ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड बी स्टडीड टू फाइंड आउट द क्वालिफिकेशन एडवर्स ओपिनियन गिवन बाय द ऑडिटर्स. तो मतलब देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट जा रहे हैं. which may have impact on GST liabilities. For example, auditor may report that goods meant for outward supplies available for stock were not reconciled or provision for obsolete items have not been made. The tax auditor may like to examine such opinion in detail. Tax auditor मतलब जो GST auditor है. तो ये इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ने ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया है, गाइड किया है कि नेचर ऑफ वेरिफिकेशन, टाइप ऑफ वेरिफिकेशन आप इसमें से क्या क्या कर सकते हो. अब जैसे ये सब चीजें मांग रहे हैं, ट्रायल बैलेंस मांग रहे हैं. ट्रायल बैलेंस से आपके ग्रुप्स देखेंगे, हेडिंग्स देखेंगे और वो उससे ही आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी नेचर ऑफ एक्टिविटी सप्लाई है. तो आपकी ग्रुपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है. आप ट्रायल बैलेंस जो भी आप बनाते हैं देखिए अब ये
अब मैं आपको एक और नीचे कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ये तो सारी ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। नोट्स टू दी अकाउंट्स देखिए, नोट्स टू दी अकाउंट्स तक आपको बताया है कि हम क्या क्या उसमें 6 महीने से एक्सीडिंग कौन है क्रेडिटर्स, तो क्या सेकंड प्रोवाइजर टू सबसेक्शन 16 सबसेक्शन 2 प्रोवाइडेड है या नहीं है 180 दिन वाला। वो मतलब उस तरह से वो उस लाइन पर वो सारी बातें ऑलरेडी तैयारी करके आएंगे आपके साथ। तो आप इसको तैयारी में इसको इंक्लूड कीजिए अपनी सारी बातों को। उसके बाद मैं आपको कुछ और नीचे दिखाना चाहता हूँ। ये रेशियोज हैं सारी, ये रेशियो कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं। एक सेकेंड, ये भी एक सेकेंड, बहुत एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट है। देखिए अब ये क्वेश्चनर है परचेजेस में इनवर्ड सप्लाईज में, वेदर ऑल परचेजेस आर सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, whether all the purchases are made only by issue of purchase order, and whether different series of purchase orders are issued. Different series हैं तो उसको correspondingly link करेंगे inward supply के purchase invoices से। So आप समझिए e-way bills is a बड़ी common चीज। e-way bills की आपकी डिटेल्स मांग रहे हैं कि आपने ई-वे बिल्स बनाए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस दीजिए। अगर आपने डिलीवरी चालान पे ई-वे बिल्स बनाए तो डिलीवरी चालान को आपने सेंट ऑन अप्रूवल भेजा था या जॉब वर्क पे भेजा था या किस कारण भेजा था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस क्यों नहीं बने। सो दीज आर दी, मतलब दे आर अप्लाइंग देयर माइंड एंड गेट डिराइविंग आउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिचुएशन ओनली। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जरा। देखिए स्टोर्स डिपार्टमेंट तक से आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है। Whether receipt in the stores record are shown only after inspection of inward supplies or before inspection. What is the frequency of stock taking of all items? They would be asking in case of manufacturing company, in case of large trading companies. So these are beautiful document. अब देखिए फ्लो चार्ट में उन्होंने बताया आपको कि फ्लो चार्ट में किस तरह से हम व्यू करेंगे आपकी ट्रांजैक्शन को, परचेजेस को किस तरह से व्यू करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस तरह से व्यू करेंगे, पेमेंट रजिस्टर, भारतोल माप आया कि नहीं आया, स्लिप है, मटेरियल रिसीट, लैब टेस्ट है, रिटर्न ऑफ रिजेक्ट और रिजेक्टेड इनपुट्स, इनवर्ड सप्लाईज लीज्ड, इनवर्ड सप्लाईज रिटर्न ऑफ, कैपिटल गुड्स, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर. How many of us do maintain fixed asset register? They already know that. So don't think that they may not be knowing all these things. They all, or even State Department is following this manual. What we encounter, not only the center. अब कह रहे प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है. Now they are understanding the nook and corner of the business transactions. So why I'm reading it for you, because to sensitize you all that you must read it. अच्छा आगे बढ़ रहा हूं जी, और आपको एक और बस यहाँ पर ये लास्ट चीज दिखाऊंगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. वैसे तो कोई भी चीज मिस करने वाली नहीं है यहाँ पर. हर पेज पे बहुत, मतलब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है. और अगर आपने एक बार ये पढ़ लिया तो then it would be very convenient for you to get this audit done. अगला प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी यही है, ऑडिट करवाना, ऑडिट्स का रिप्लाई देना, फिर आगे शो कॉज नोटिस का रिप्लाई बनाना. सतीश सर तो ऑलरेडी तैयार बैठे हैं. So as we all need to gear up actually. Yeah. So as we are also eagerly waiting. अब इतनी पढ़ाई लिखाई की है तो कुछ तो काम आनी चाहिए ना. देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट है. अब मैं आपको यहाँ पर देखिए, बस पहुंच गए हम, यहाँ एंड तक ले गया हूं मैं आपको ऑलमोस्ट, हालांकि मैं पढ़ नहीं रहा. देखिए जी, रिकॉर्ड्स टू बी वेरीफाइड इन द मार्केटिंग एंड आउटवर्ड सप्लाई डिपार्टमेंट. Now they are asking questions from marketing and outward supply department also. If you have or not, purchase orders, price circulars, delivery challans, material transfer notes, sales books. अब price circular से क्या निकालेंगे? अब price circular से ये निकालेंगे कि आपने जो प्राइस ऑफर किया और जिस प्राइस पे इनवॉइस किया, क्या वो मैच करता है कि नहीं करता. डिस्काउंट आपने बिफोर सप्लाई दिया, आफ्टर सप्लाई दिया. अगर आफ्टर सप्लाई दिया तो आउटवर्ड सप्लाई रिड्यूस नहीं करेंगे आप, सेक्शन 15(3) के अनुसार. ये देखिए परचेज ऑर्डर में क्या चेक करेंगे. ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाना चाहता था कि
ये चीजें आपकी उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि हम प्राइस सर्कुलर से अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो उसका नेचर क्या है, आप डिस्काउंट एडमिसिबल है या नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या बेनिफिट दिए गए हैं, डिलीवरी चालान से सारी चीजें, डिलीवरी चालान कितनी सीरीज हैं, रिटर्नेबल डिलीवरी चालान कौन से हैं, नॉन रिटर्नेबल डिलीवरी चालान कौन से हैं, स्क्रैप पर नॉन रिटर्नेबल डिलीवरी चालान में अगर कोई स्क्रैप बेचा गया तो उसके ऊपर जीएसटी क्या पे हुआ है कि नहीं हुआ। सो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ आपके फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से नहीं, आपकी सेल्स, मार्केटिंग, स्टोर्स, आपका सारी चीजों से वो इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। So, my dear friends, this is what, of course, we can continue discussing it, क्योंकि 138 पेज हैं तो इसको पढ़ाने में 5-7 घंटे तो टोटल डिस्कशन में चाहिए ही चाहिए। लेकिन आज का टॉपिक क्योंकि सेंसिटाइज करना था आपको, मैं सारी डिटेल्स इसमें से नहीं ले पा रहा, बट आई बिलीव कि आप इसको एक बारी अपने लेवल पर जरूर पढ़ेंगे और फिर जो भी आपका डिस्कशन होगा, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। एक क्वेश्चन तो ये था कि can you share PPT of the today webinar? Yes, we'll definitely be sending this PPT through Telegram. Who is not in my Telegram list, kindly come. Next question. जी, Q&A में है, can the audit be done for multiple years? yes sir, we have already replied that. And can we get the material? Yes, material will be there. So these are the only questions. Right sir. मेरा एक क्वेश्चन है, एक शो कॉज नोटिस आया. दिस इज ऑफ कोर्स ऑफ वन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके केसेस मैं हैंडल करता हूँ. तो 14 जून 19 को उनका एक शो कॉज नोटिस आया जिसमें रीजन था एनी टैक्सपेयर अदर देन कंपोजिशन टैक्सपेयर हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 months. तो इन्होंने मार्च 18 तक ही रिटर्न फाइल की थी, उसके बाद नहीं फाइल की, तो 14 जून 19 को शो कॉज नोटिस आया. वैलिड नोटिस है विद गुड रीजनिंग. उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया और 23 जुलाई 19 को वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया. उसका रिवोकेशन कुछ फाइल नहीं किया, कुछ नहीं किया. रीजन, पहले वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं फॉरेनर को, बट सर्विसेज दे रहे हैं इंडिया में. तो उनके मानना ये था कि शायद ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, पर हर सेमिनार में वो क्वेश्चन पूछते थे, हमारे ही सेमिनार में स्टडी सर्कल में, और अदरवाइज भी कई स्पीकर से मेरे थ्रू भी उन्होंने कंफर्म कराया था कि वेदर दीज सर्विसेज आर टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल. हर एक स्पीकर का आया था कि नहीं दीज आर टैक्सेबल. उसके बाद फिर जब उन्होंने डिसाइड भी किया कि ठीक है लेट अस टेक इट एज अ टैक्सेबल एंड पे द टैक्स, तो पैसे नहीं थे उनके पास और उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की. नाउ अभी जब इम्यूनिटी आई थी कि 500 रुपए पेनल्टी के साथ रिटर्न फाइल कर दो, तो उन्होंने जुलाई कैंसिल हुआ ना 23 जुलाई 19 को, तो जुलाई 19 तक की सारी रिटर्न्स फाइल कर दी. और जो सिस्टम था कि भाई अगर आप रिटर्न सारी फाइल कर दोगे अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन, तो वो आपका रिस्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिक. वो नहीं हुआ. कुछ नहीं है, मतलब तो कुछ नहीं है. सिस्टम कहते तो वो यही है ना कि रिटर्न फाइल कर दो और उसके रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर दो. तो अब हैविंग फाइल, उन्होंने जून 21 में रिटर्न फाइल किए सारी. ठीक है जी. उनकी रिवोकेशन विंडो ओपन नहीं हुई, तो वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं लगा पाए. रिटर्न जुलाई तक ही कर सकते थे क्योंकि रिटर्न जो कैंसिलेशन जुलाई 19 का था. 2-4-5 बारी जाके मिल भी आए हैं, और अब उनका कहना ये है कि या तो आप इसमें अपील फाइल करो, अदरवाइज हमारे पास पावर नहीं है इसको आपको रिवोकेशन की एप्लीकेशन. तो अपील भी फाइल नहीं हो पाएगी. अपील भी फाइल नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम पीरियड बहुत हो गया. तो क्वेरी ये है कि अब इसको हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस इशू. एक बारी जीएसटीएन को लिख के देखना चाहिए. जीएसटीएन वुड मे बी इन अ पोजीशन टू हेल्प. जीएसटीएन मींस आपका ये नेटवर्क पोर्टल. क्योंकि रिवोकेशन अभी क्योंकि बड़ा पॉपुलर मतलब एक और सजेशन है. आपके पास जीएसटी काउंसिल का ईमेल आईडी आप निकाल सकते हो उनकी वेबसाइट से. आप ये सारी कहानी जीएसटी काउंसिल को भी चिट्ठी लिख दें. हाँ जगजीत जी बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं. नहीं सर, पहले आप कंप्लीट कीजिए, मैं उसी में इससे रिलेटेड ये केस है रोनी का.
उसमें मैंने चलिए। रिप्लाई दिया है, उसी के बारे में बात करूंगा जी। चलिए चलिए ठीक है। तो आप जीएसटी काउंसिल को भी लिख सकते हैं। बस करो, हाथ तुम थल्ले कर लो, ਤੁਹਾਨੂੰ बुला लांगे। जी जी हाँ। जी 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 जीएसटी काउंसिल को भी लिख सकते हैं सर आप। मेरे हिसाब से एक बार आप इसको ट्राई करें। अगर ये भी नहीं होता सर, देन रिट वुड बी द लास्ट ऑप्शन। ओके, और नहीं तो फिर अगर टैक्सेस बनते हैं, टैक्सेस जमा करा दिए क्या? जुलाई तक के तो कराई दिए, बाकी फिर कराने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम टैक्स तो पे कर दें DRC 03 में। हाँ, टैक्स आप पे कर दीजिए DRC 03 से, क्योंकि अगर और तो रिटर्न आपका विंडो ही ओपन नहीं हो रहा। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डू द बिजनेस। बिजनेस नहीं कर पाएंगे आप जब तक वो रीएक्टिवेट नहीं होगा। हाँ या फिर जगजीत नया जी, नया नया रजिस्ट्रेशन नंबर लें। नया नंबर सेम पैन पे तो मुश्किल ही है। वो आपको वेरीफाई नहीं होगा। हाँ बताइए सर। हाँ जगजीत जी, आप क्या ऐड कर रहे मैं हैं? इसमें ये कह रहा था कि रोहिणी में मेरे क्लाइंट का केस चल रहा है। मेरे क्लाइंट के केस में क्या हुआ दिक्कत, क्योंकि लॉकडाउन था और वो मेरा क्लाइंट जो है वो हैंडीकैप भी है। उसका बिजनेस 2019 में किसी तरह से पेमेंट वगैरह ब्लॉक होने से उसका जीएसटी नंबर भी कैंसिल हो गया और बिजनेस भी डाउन हो गया। लॉकडाउन ये आया और उसका आउटडोर कैटरिंग सर्विस का बिजनेस था, बिजनेस भी बंद हो गया और जो पैसा मार्केट से लेना था वो स्टिल पेंडिंग इन द मार्केट। सो मैंने उस केस में कमिश्नर के पास गया, पर्सनली रिक्वेस्ट किया, और जहां तक का, जैसे अभी सतीश सर बता रहे थे कि जहां तक जीएसटीएन कैंसिल है वहां तक की रिटर्न अपलोड कर दी, टैक्स डिपॉजिट कर दिया। सो नाउ अभी जो नेक्स्ट डिस्कशन जो मेरी चल रही है कमिश्नर साहब से वो यही चल रही है। उन्होंने बोला कि आप टैक्स डिपॉजिट करके मेरे पास ले आइए चलान अप टू डेट, जैसे DRC 03 वगैरह लेके आ जाइए, एक एप्लीकेशन ले आइए और उस एप्लीकेशन के बेसिस पर मैं एक अप्रूवल के लिए डाल दूंगी। जो सीनियर कमिश्नर है हमारे, वहां से अप्रूवल आ जाएगा। देन आपका ये जो रेवोकेशन वाला पार्ट है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जस्ट नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये मेरे केस में ये डिसीजन है। ये भी किस तब लेवल है, पे आप बात कर रहे हैं? ये मैं कमिश्नर लेवल पे बात कर रहा हूँ, जो कमिश्नर है कमिश्नर वहाँ ऑफ की GST। जीएसटी की। यस, इधर इस साइड में जो, स्टेट टैक्स। हाँ जी मैं स्टेट इसी की बात कर रहा हूँ। नागलोई का केस है मेरे पास, तो वहाँ पे मैं कमिश्नर स्टेट से टैक्स हुआ नागलोई के, ना, स्टेट हाँ टैक्स जी हाँ हुआ। जी तो दिल्ली GST कमिश्नर से आप मिल रहे हैं इसमें? जी 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 जी, मैं डायरेक्ट गया उनके पास और उनके साथ बात की। उन्होंने मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, डॉक्यूमेंट देखने के बाद रिटर्न्स देखी, इंस्पेक्टर को उसको बुलाया और उसको बोला आप इनका स्टेटस बताइए, पूरा प्रिंट आउट निकालिए। कम से कम मैं 1 घंटा उनके पास बैठा। सब कुछ एनालाइज करने के बाद उन्होंने फाइनली बोला कि जो आपका अमाउंट है बाहर से पैसा सर उधार वही पे ले वही लीजिए, बात है सर, डिपॉजिट कर क्वेश्चन दीजिए वही सारी। है कि डिपार्टमेंट के पास कोई फैसिलिटी नहीं है इसको करने की। हाँ आप एक चिट्ठी जो है जीएसटीएन को लिखें और जीएसटी काउंसिल को सीसी में डाल दें सर। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस काउंसिल के साथ बहुत अच्छा है। मैंने तो अगर 10 सजेशंस उन्हें दिए हैं तो 6 इंप्लीमेंट भी हुए हैं। तो आप ये चिट्ठी लिख दीजिए बहुत इजीली सर। आपका ये काम मुझे ऐसा लगता है कि वहां से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस जीएसटीएन से डिपार्टमेंट के पास आ जाए। GST काउंसिल का मेल आईडी अगर रेडिली अवेलेबल है तो दे सर दो। मेरे पास अभी तो नहीं है, बट मैं व्हाट्सएप आप, कर देंगे। हाँ कर दूंगा सर। आप वैसे काउंसिल की साइट से जाएंगे तो मैं वैसे बैक कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत। ठीक है। एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन ये इस आया पे है। आया है चैट बॉक्स में, नंजे भारद्वाज जी का। One of my client has not filed GST returns from September 19 till date, and GST has been cancelled in January 2020. Is also closes business activities, but at the time of cancellation, there was a stock of 60 lakh. Now, what is the best way? अब इसमें सर ये best way, 60, हाँ 60 best way, लाख का जो स्टॉक है सर, ये तो डीम टू बी सप्लाइड हो गया सर आपका। हाँ, पर अब उसमें क्वेश्चन ये है कि जब उसने कैंसिलेशन किया तो डिपार्टमेंट हैज टू give the cancellation with the cancellation order what is the amount of tax payable, वो generally nil करके भेज रहे हैं, so that goes to the rescue क्योंकि डिपार्टमेंट is asking you have to deposit nil. पर वो However, ठीक है, उनका ऑर्डर है, लेकिन जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन वो यही है, शेड्यूल 1 में भी यही स्पेसिफिक है, दैट इज डीम्ड सप्लाई। तो मेरे हिसाब से तो 60 लाख रुपए पे टैक्स बनता टैक्स है। देना चाहिए। हाँ 60 लाख पे टैक्स बनता है, चाहे उसने वही आप कह रहे हैं ना, जब डीआर ये कह रही है कि जी ये तो हमें पता है, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है और कोई सिस्टम में, तो वो भी यही कह देंगे जी हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको डिटरमाइन करने का यहाँ टैक्स। तो आपको खुद देखना चाहिए था, लॉ का कंप्लायंस तो आप ही ने करना है, हमने थोड़ा करना है। हमने तो आपको पहले छुप के खड़े होना है कि आप सिग्नल क्रॉस करें, जब सिग्नल क्रॉस करेंगे तब आपको रोक लेना है। तो उसके लिए डायरेक्शन आ गई है कि भाई छुप के नहीं खड़े होना है। यू आर ऑल ट्रैफिक पुलिस हैज टू get this traffic movement done in a better way, not to get the challans. ठीक बात है, और यही लॉजिक है सर। ये तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खड़े हैं या पेनलाइजेशन के लिए खड़े हैं? Yes.
चलिए सर, मेरे ख्याल और कोई सवाल और नहीं कोई है। क्वेश्चन नहीं है। हाँ, So, और मैं यहाँ पर सभी कन्वेनर साहब, हमारे सतीश भाई साहब, बड़े भाई साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारे छोटे भाई साहब जगजीत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, डिप्टी कन्वेनर, कि सतीश भाई साहब ने मुझे ये मौका दिया, और बाकी सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। और देखिए, अभी तक भी आप लगभग ऑलमोस्ट सेम संख्या में यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ 2 घंटे से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका स्ट्रेंथ बताता है, ये आपकी डेडिकेशन बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Rajinder. Over to Jagjit for vote of thanks. Thank you, Satish sir, and once again, thank you, Rajinder जी। जितनी बार भी स्टडी सर्कल, क्योंकि ये राजेंद्र जी का स्टडी सर्कल है, जब भी आते हैं एक अपनापन लगता है, और अपने पन के तरीके से ही बात करते हैं, बड़े खुल के बात करते हैं, और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि लेक्चर देने आए, बड़े इत्मीनान से बात करते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे जीएसटी पे डिस्कशन ही चल रही है। तो एक इनका बहुत अच्छा वो चाय पे चर्चा वाला, जब जीएसटी पे चाय पे चर्चा होती है, सो I would say it's a one of the example of this, चाय पे चर्चा, बड़े इत्मीनान से बात की सर ने। A wonderful session taken by the Rajendra sir, so already बड़े helpful है। So thanks a lot to Rajendra ji for being a part of this the program as a speaker, and over to you, Satish ji. Thank you, Jagjit. And once again, I would like to thank all the participants who joined, and of course, Rajinder Roda ji and Jagjit Singh. हमारी आज की चाय पे चर्चा जीएसटी पर आज यहीं समाप्त होती है। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। We Thank do you, sir. have Thank you. a session tomorrow on Code of Ethics. Do join us, and on 20th also we have a session on Coro 2020 and Schedule 3. So do join us. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank